Welcome, sir. Welcome, Yana. Renowned scholar, Khaja Ismail Khan Sahab. Welcome, sir. Welcome, Salman. Thank you, sir, and welcome to all of you. हे सज्जनों, हिमालय की ऊंचाइयों में सजीव होकर हम अपने विचारों और शब्दों के माध्यम से उन कहानियों को जीवंत करेंगे जो हमारे दिलों में है। यहाँ हम न केवल अपने व्यक्तिगत यात्रा के अनुभव साझा करेंगे, बल्कि उन सामाजिक विषयों पर भी चर्चा करेंगे जो हमें जोड़ते हैं। आइए इस कॉन्क्लेव में हम सब मिलकर एक ऐसी रचनात्मकता की प्रक्रिया को आकार दें जो न केवल हमें समृद्ध करे, बल्कि अपना आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने। आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन यूटी लद्दाख श्री विक्रम मलिक and also from the Himalayan and northeastern states, and have blessed us with their august presence. I might not be the right person to speak about the essence of literature, but in the light of the bubbling energy of this event, I cannot hold myself back to say a few words about its importance. For some, literature is the mirror of the society. Some call it the lighthouse, while some call it the guiding light and the conscience keeper. While people may have different takes on this, we all know that writers express the colors of life in such a vibrant manner that every stroke of the pen brings out a new perspective towards life, one which is often hidden to the common man. In other words, they transcend the multiple layers that exist in our lives. I hope that during the course of the panel discussions, we all shall have a great exchange of knowledge and ideas and further enrich our lives. Best wishes to all the distinguished guests, writers and participants. A word of appreciation for our Joint Director Shri Imtiaz Khaja and his team for such a wonderful event. Thank you all. Rigna student that you can in a Sherik Chimana Tapegotono, the Rigna student that you can Sherik Pugarina, then a Mimam Tunacham Hijan, Chudu Tundechan, then a title of Zampin Manko Matan, director Mankotono, Techama, then a Jan YouTuber, Dominin to a catch as a Charles for Tayon Tasena, you can write some Tuka and some Samara. Then Sherik Changma, Madame Ladasana, Mancha Pachago Herina, Sherik Manguji Porna Channel, Young Chim Piro Channel, Mambari Channel. They sama Namchupara, Scarpa Herina, Gary Josena, Yagas Compamicha, the Desuparati Sherico, Yagas Compelon Chamano, take care, Rana Scarpa and Daily Chuchapo, Mark Hachanino, Inchimiti Rana Scarmen Bala. Urdu, English, Hindi, Saman, and Dibushas, Mama Hachandu, Chazana, Spechana, Kachasigander, Nata, Nubuzan, as about translation to Urdina, to Anrina Jotuka, Urdina Jotu, Teso Mampoji. Patetu, Majospina, Madame Lada, Kurina, Radasa Scarpon goes at Luxemania, you know, the Jan to Kochati, English, Namudina, you just on Mark Hachanino, to Samara. Then another Jimen Nubuzan, your papa. Tafarus Puterina, Khayal de Senara. Koyan Urduning upon Mashante Yalman. Quello Bare Urdus, Ashak, Musco, Zarazara, Gulab, Katamu, Yum, Sukunki, Me Parvari, Karlu, Jame Urdus, Bebrakarmu. Totopo, Benana, Ladas Skatan, and Lina Chizina, Ladas Sherik Puterina, Natanze, Jistin me and one Juna, then Natasame, Tayon Chasene Rakatsame. बस सिर्फ यही कहूँगा कि एक राइटर का एक लेखक का उतना ही किरदार है जितना समाज के दूसरे जो सोशल वर्कर्स हैं
समाज के जो समाज की खदमत करने के लिए जो पर्सनैलिटीज़ हैं, जितना उनका किरदार है उतना ही एक अदीब, एक शायर और मुहक्किक का भी है। समाज में जो भी बुराइयां हैं उनको हम अपने कलाम के ज़रिए, अपने तख़य्युलात के ज़रिए, अपनी तसनीफ़ात के ज़रिए हम लोगों में शऊर पैदा कर सकते हैं, उनमें एक तहरीक पैदा कर सकते हैं, ताकि हमारा जो खित्ता तारीख़ी एतबार से एक पुरअमन और इसकी तारीख जो है एक गुलदस्ते से ये इसको मुशब्बा करार दिया गया है, उसकी जो तकद्दुस है वो बरकरार रहे। इसके अलावा एक शायर व मुहक्किक और अदीब या राइटर का उसकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आबा व अजदाद की सकाफ़त को, अपनी ज़बान को, हमारी रिवायात को हिफाजत करते हुए हम अपनी नई जनरेशन तक मुंतकिल करें, ताकि हमारा जो अनमोल वर्षा है वो हमेशा कायम रहे। From the moment we landed at the airport in Ladakh, we are in awe of the magnificent landscape of Ladakh. And Ladakh, with its awe-inspiring landscape, deep cultural heritage, has always been a land of great stories. And it is here, amidst the grandeur of the Himalayas, that we come together to explore the power of words and ideas. We extend our heartfelt gratitude to the people and government of Ladakh for their gracious hospitality and for welcoming us with in this magnificent region. I would also like to congratulate the organizers, especially Department of Information and Public Relations, UT Ladakh, for organizing such a meaningful event, which is a celebration of literature, a platform for enriching dialogue, and an opportunity to foster connections that transcends boundaries. Ladies and gentlemen, before the congress, our 잠깐이 기타에 이제 이노베이션 주제생아 로지 밀만 못도 사마마서 있는 이제 저렇게 이제 초상만이 히말라야 초상만이 무드에 제도 사람을 위해서 이해야 되냐고 데모크라시 아까 요즘에 가방을 위해서 양심을 내시도록 위해서 양심 때문에 이제 바탕마 이것이 부딪히게 참여하는 나가 부딪다 전화 주세요 부딪다 우리가 부딪히고 semsena tappolan rawaimaoro tappomaso 되게 유신 Today that we have the successful personalities from the field of filmmaking, from the field of theatre, sitting together with the writers today, and I'm sure that a lot of output we'll get from this function today, panel discussion and all. When we talk about culture, the rich heritage and culture of Ladakh, I think it needs to transcend the boundaries of language. I would say that because I myself is not conversant in the Modi language, but I understand that a lot of our stories, a lot of our writing is in Urdu and Modi language. I'd heard of Gyalam Kesar's story when I was a child. Of course, it was through oral recitation of the stories. But the first time when I read it was just 2 years back, when Kachu Saab I read his English translation, and I really could understand the nuances of this wonderful saga of Gyalam Kesar. And I'm sure we have much more wonderful stories of Ladakh which need to be translated, which need to be converted so that people across India, people across Ladakh are able to understand and read it. कॉन्क्लेव हो रहा है लद्दाख में, उसके बारे में जी, ये पहला इस तरह का एक कॉन्क्लेव जो है यूटी लद्दाख में हो रहा है, जिसमें जो है स्पेसिफिक जो हमारे हिमालयन पूरे जितने भी जो हिमालयन जो हमारे रीजन है उसमें से जो है हर एक स्टेट से जो है इस राइटर्स कॉन्क्लेव जो लद्दाख में हो रहा है यहाँ पे लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए जो है एक अपॉर्चुनिटी दिया है। और हिमालयन स्टेट से जो है एक से एक जो बेहतरीन जो है स्कॉलर्स और राइटर्स को जो है एक प्लेटफॉर्म में लाने का भी जो है एक प्रयास हुआ है। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक
एक अपॉर्चुनिटी जिसमें जो है हमारे जो स्कॉलर्स और जो राइटर्स हैं उनको जो है हिमालयन रीजन्स में और भी जितने भी जो राइटर्स और स्कॉलर्स हैं उनसे रूबरू करने का जो है एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी दिया है, एक दूसरे को जानने के लिए, एक दूसरे के कल्चर को जानने के लिए, और साथ ही साथ जो है जो एसेट हमारे पास है, जो हमारे जो स्कॉलर्स और राइटर्स ने जो किताबें लिखा है उनको भी जो है इन सभी हिमालयन स्टेट्स के जो है जो राइटर्स है उनके सामने लाने के लिए और लोगों के सामने लाने के लिए, और भी जो है नई चीज़ें क्या कर सकते हैं, एक फ्यूजन के साथ जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे विषयों के ऊपर जो है एक सोच रख के जो है इस हिमालयन राइटर्स कॉन्क्लेव का जो है ये सम्मेलन जो है यहाँ पे जो है आयोजन किया है। मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन का मैं बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने इस तरह का जो आयोजन यहाँ पे किया है। और आज की इस प्रोग्राम में एक अच्छी चीज़ें ये भी हो गया, जैसे हम काउंसिल जो है हम लेट टशीर अब्गेस जी के मेमोरी में जो है एक लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल करते हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट और यूटी लेवल पे ही होते हैं। तो अभी जो है उसको जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने का भी जो है एक डिस्कशन में आया। तो हम उम्मीद करेंगे आने वाले दिनों में लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो इंटरनेशनल लेवल का एक फेस्टिवल हो और दुनिया के हर कोने से जो है स्कॉलर्स और राइटर्स का एक मीट जो है लद्दाख में हो। तो उसका भी हम लोग आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे। और आज जो है हमने जो है काउंसिल के जो इनिशिएटिव जो जिसमें राइटर्स और स्कॉलर्स को हम स्पेशल इंसेंटिव्स देते हैं उनके बारे में भी जो है लोगों को विस्तार से जो है थोड़ा सा रूबरू कराया। और जो इनिशिएटिव हमने जो है महसूस किया कि हमारे पास इतने सारे एसेट्स हैं, इतने सारे एक से एक जो है बेहतरीन जो है राइटर्स है, इतने सारे स्टोरीज अच्छे लिखा हुआ, लेकिन उनको पढ़ने वाला काम मिलता है। तो एक कल्चर हमें रिवाइव करना पड़ेगा रीडिंग का, जी लिसनिंग का। तो पढ़ना, जब अगर कोई किताब लिखता है उसका कोई पढ़ने वाला ना हो तो उससे जो है वो डिमोरलाइज हो जाता है, वो अगला किताब लिखने के लिए जो है वो मोटिवेट नहीं होते हैं। तो इसलिए जो है हमने ये सुझाव दिया है कि इस तरह के सम्मेलन में अगले बार से जो है यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बच्चों को तो बुलाना ही है, साथ ही साथ जो है स्कूल्स के बच्चों को भी जो है इसमें जो है बुला के जो है उनको भी जो है ये इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए और उनको भी पता होना चाहिए हमारे पास इतने सारे राइटर्स हैं और इन्होंने इतने अच्छे किताबें लिखा है, लेकिन वो किताबें जो है उन तक पहुंचता नहीं है, उनको रीडिंग करने का आदत नहीं है। तो वो प्रैक्टिस भी हम लोगों को करना पड़ेगा। और हमने एक छोटा सा प्रयास किया था सुमूर में, एक हमारे एक यंग विमेन है जो हार्वर्ड से ग्रेजुएट करके आए हैं, रिग्जिना हो, वो सुमूर के ही हैं। उनके साथ हमने जो है काउंसिल के कोलैबोरेशन में जो है एक कम्युनिटी लाइब्रेरी जो है हमने जो है सुमूर में अलग अलग इम्पोर्टेंट जो साइट्स है वहाँ पे जो है हमने इस्टेब्लिश किया ताकि कोई भी आता जाता जो है वहाँ पे बैठ के जो है अच्छी किताबें पढ़ के जो है अच्छा इन्फॉर्मेशन हासिल करें। इस तरह का हमने एक प्लेटफॉर्म का एक शुरुआत किया है जिसमें लोगों को रीडिंग का भी आदत लग जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस कॉन्क्लेव से जो है हमें बहुत ही उम्मीदें हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अभी इस बार के पहला कॉन्क्लेव में जो है 2 स्टेट से जो है स्कॉलर्स ने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया है, जिसमें मिजोरम और जो है अरुणाचल से जो है स्कॉलर्स आके इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये 2 दिन का ये जो सम्मेलन है ये पॉजिटिव हो, कंस्ट्रक्टिव हो, इस तरह का हमारा अपेक्षा करते हैं। इस तरह से जो है हमने जो है अपने स्कॉलर्स भाइयों के और बहनों के साथ चर्चा किया है। तो हमें पूरा उम्मीद है, मैं एक बार फिर से जो है जितने भी स्कॉलर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है उन सबको मेरे तरफ से बेस्ट विशेष कहना चाहूँगा। काउंसिल की तरफ से एक बार पहले भी एक इनिशिएटिव के बारे में अनाउंसमेंट हुआ था, कोई राइटर्स जो लिखते हैं उनके लिए आप सपोर्ट काउंसिल की तरफ से सपोर्ट किया जाएगा। जी तो उस पर क्या कहेंगे? जी, वो हमने लास्ट ईयर से ही हमने शुरू किया था, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स आए, राइटर्स जो जिन्होंने किताब तो लिखा है लेकिन वो पब्लिश नहीं कर पा रहे थे। अब पब्लिश करने के लिए तो एक तो वो मोटिवेट नहीं हो रहे थे, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स ने किताबें लिखा तो है लेकिन उसकी अप्रिसिएशन नहीं होते हैं, लोग उस किताब को खरीदते नहीं है क्योंकि पता नहीं चलता। और लद्दाख में एक चीज़ देखा है, जो रीडिंग जो कल्चर है वो बहुत ही कम है। तो लोग जो है किताब खरीद के पढ़ना जो है, मेरे ख्याल से वो ट्रेंड जो है हमें थोड़ा सा इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। लेकिन अच्छे चीज़ें लोगों ने लिखा है तो हमने उनको जो है
हौसला अफजाई के लिए जो है हमने एक स्पेशल इंसेंटिव्स जो है देना हमने शुरू किया है, जिसमें जो है कोई भी ऐसा राइटर्स हो जिन्होंने कुछ लिखा है और अच्छी चीज़ें लिखा है तो वो अगर पब्लिश करना चाहते हैं तो उस इंसेंटिव्स के फ़ायदा लेते हुए जो है वो अपने किताब को जो है वहाँ पे पब्लिश कर पाते हैं और काफ़ी लोगों ने वो फ़ायदा लिया हुआ है। तो हम उम्मीद करेंगे आने वाले दिनों में हमारा ये सपोर्ट कंटिन्यू रहेगा और हमारे जो है राइटर्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, इस तरह का हमारा प्रयास है।